बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेड sheet software developed by Microsoft. It is a part of MS Office suite. It is one of the most popular and useful spreadsheet software used today. The data is in a spreadsheet is represented in the form of a table. बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ये MS ऑफिस स्वीट का ही एक पार्ट है। फीचर्स ऑफ एक्सेल। The features of Excel are as follows. 1. MS Excel contains formulas which are used for performing simple and complex mathematical calculations. Functions are the built-in formulas used for calculating percentage, average, interest, etc. बच्चों, MS Excel जो है उसके अंदर formulas दिए गए हैं जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी। इसके अंदर फंक्शंस को बिल्ड किया गया है जिनमें फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेटिंग कर सकते हैं परसेंटेज को, एवरेज को और इंटरेस्ट को भी। इफ एनी चेंज इज मेड इन अ सिंगल सेल देन द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड इन द एंटायर वर्कशीट. Data can be searched quickly and if required replaced instantly. MS Excel allows you to create different charts such as bar charts, pie charts, line charts, etc. This helps us to analyze and compare data very easily. बच्चों, MS Excel हमें क्रिएट करता है डिफरेंट चार्ट्स को, जिसमें बार चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट्स होते हैं, लाइन चार्ट्स होते हैं। ये हमें हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए कि डाटा को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं ईजी फॉर्म में। 5. Data can be seen in a graphical form such as charts which helps to understand, analyze, compare data in an effective manner. बच्चों, डाटा हमें एक ग्राफिकल फॉर्म में मिलता है जैसे चार्ट्स में, तो इसे हमें समझना, इसे एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। ओपनिंग एक्सेल 2016. To open Excel 2016, follow the given steps. 1. Click on Start button. 2. Choose all apps. 3. Click on Excel 2016. The opening window of Excel 2016 will appear. Choose the blank workbook thumbnail from the screen. A new blank workbook named Book 1 will be open on the screen. बच्चों, अगर हमें Excel 2016 को ओपन करना है, 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन में। 2 में जाएंगे, चूज़ करेंगे ऑल ऐप्स को। 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे Excel 2016 को। अब जो ओपनिंग विंडो है Excel 2016 का हमारे स्क्रीन पर नज़र आएगा। चूज़ करेंगे हम ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल को हमारे स्क्रीन से। अब न्यू ब्लैंक वर्कबुक जो है वो बुक 1 के नाम से हमारी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। बेसिक वर्कशीट एंड वर्कबुक कंसेप्ट्स. द एक्सेल विंडो दैट opens on the screen is called a workbook. By default, it has temporary name as book 1. Workbook is just like a notebook which contains a number of pages called worksheets. A worksheet is made up of rows and columns in which you can enter and work with data. बच्चों, एक्सेल विंडो जो है जब स्क्रीन इसकी ओपन होती है तो इसे कहा जाता है वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम टेम्परेरी नेम दे दिया जाता है बुक 1। वर्कबुक जो होता है एक नोटबुक की तरह ही होता है जिसमें नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, जिसे वर्कशीट्स कहा जाता है। फैक्ट. बाय डिफ़ॉल्ट एन एक्सेल वर्कबुक डिस्प्लेज अ सिंगल वर्कशीट विद द नेम शीट 1. You can add any number of worksheets in a workbook according to the limits of memory available on your computer. अब a worksheet consists of 1,48,576 rows and 16,384 columns. बच्चों, एक वर्कशीट में 1,48,576 रोज होते हैं और 16,384 columns होते हैं. Columns are represented by alphabets on the top and rows by numbers on the left side of the worksheet. Components of a worksheet. Cell. The interaction of a row and a column is a worksheet called cell. Each cell is identified by its column letter and row number, which is known as cell address. For example, a reference to the cell at the intersection of column A and row 3 is A3. A cell is used to store data such as text, numbers, formulas, functions, etc. A cell contains up to 32,767 characters. बच्चों, जो रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है वर्कशीट में उसे सेल कहा जाता है। जिसने भी सेल होते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसके कॉलम लेटर से और रो के नंबर से, जिन्हें सेल एड्रेस कहा जाता है। एक सेल जो होता है उसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, किस फॉर्म में? टेक्स्ट के फॉर्म में, नंबर्स में, फार्मूलाज में, फंक्शंस में, और इसमें 32,767 कैरेक्टर्स होते हैं। आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। अ सेल रेंज कैन बी सिलेक्टेड बाय ड्रैगिंग और यूजिंग शिफ्ट की और बाय फंक्शनिंग की F8. एक्टिव सेल.
Whenever you click in a cell, thick black border appears around it. This highlighted box is called an active cell. जब भी आप किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो एक thick ब्लैक बॉर्डर उसके आसपास नजर आता है. इस हाईलाइटेड बॉक्स को एक्टिव सेल कहते हैं. रेंज. A range is a group of neighboring cells that touch each other. It can be as small as single cell or as big as complete worksheet. You can specify a range by writing the starting cell address followed by the ending cell addresses, both separated by a colon. For example, B1 colon B3 indicates the range starting from B1 cell address and ending in B3 cell address. फिर आता है नेम बॉक्स. नेम बॉक्स इज प्रेजेंट above the column heading on the left side of the window. It displays the position of the cell pointer. बच्चों नेम बॉक्स जो होता है वो कॉलम हेडिंग के लेफ्ट साइड में विंडो के प्रेजेंट होता है. ये डिस्प्ले करता है सेल पॉइंटर के पोजीशन को. फॉर्मूला बार. द फॉर्मूला बार इज प्रेजेंट to the right of the name box. This bar shows the characters and formulas that you enter in an active cell. बच्चों फॉर्मूला बार जो है वो नेम बॉक्स के राइट साइड पे प्रेजेंट होता है. ये बार शो करता है कैरेक्टर्स और फार्मूलाज जो कि आपने एक्टिव सेल में एंटर किए होते हैं. कॉलम हेडिंग्स. Alphabets on the top border of each worksheet are known as column headings. These headings identify columns with letters A to Z, AA, AZ, BA, BZ, XAA, XFT. Every worksheet contains 16,384 columns. Row headings. The number marked from 1 to 1,48,576 along the left border of the worksheet represent the heading of each row. Status bar. The status bar displays the current status of the cell and is located at the bottom of the Excel window. It contains the name of the currently selected command or current activity. It also display warning messages. बच्चों स्टेटस बार जो है वो डिस्प्ले होता है करंट सेल में. सेल जो है लोकेट होता है बॉटम में एक्सेल विंडो के. बच्चों आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं. डिफॉल्ट कॉलम विड्थ इज 8.43 कैरेक्टर्स. इट कैन बी चेंज. बच्चों डिफॉल्ट कॉलम विड्थ जो होता है वो होता है 8.43 कैरेक्टर्स का. इस जिसे चेंज भी किया जा सकता है. Moving around the spreadsheet. While entering the data in a worksheet, you need to move the cell pointer from one cell to another with the help of various keys defined in the given table. बच्चों जब भी आप वर्कशीट में डाटा को एंटर कर रहे हैं और सेल को मूव कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उस टाइम पर आपको कुछ कीज़ की ज़रूरत होती है जो यहाँ पर दिए गए हैं. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ कीज़ दिए गए हैं एंड देन फंक्शन दिया गया है. बच्चों ये कीज़ जो है इसका फंक्शन है इट शिफ्ट्स द कर्सर वन कॉलम राइट. देन इस की का मतलब है इट टेक्स द कर्सर वन कॉलम लेफ्ट. अप का मतलब है इट मूव्स द कर्सर वन रो अप. डाउन का मतलब है इट मूव्स द कर्सर वन रो डाउन. पेज अप इट टेक्स द कर्सर टू द एक्टिव सेल हाईलाइट टू द फर्स्ट रो ऑफ द स्प्रेडशीट एंड कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्क्रॉल अप द वर्कशीट. पेज डाउन का it takes the cursor to the active cell highlighted to the next sheet and can be used as an alternative to scroll down the worksheet. Control plus home. It moves the cell pointer to the first cell of the topmost row, that is A1. Control plus end. After pressing this key, the cell pointer moves to the last used cell on a spreadsheet. Entering data. To enter data in a worksheet, follow the given steps. 1. Select the blank workbook thumbnail from the start screen and open a new workbook. 2. Click on the cell D1 and type report card. Now select the cell range where you want to enter the text. Click on the merge and center button in the alignment group on the home tab. The selected cells will be merged and the text will be centered. 3. Click on the cell A2 and type name. Press the right arrow key. Type maths in B2 and science in C2. Similarly, enter data in the rest of the cell. 4. Click on the cell A3. Type Anaya and press the enter key. The cell pointer moves to cell A4. 5. Type Vaishnavi and press down arrow key to move to cell A5 and type Ojas. Similarly, enter the remaining data. बच्चों अगर आपको वर्कशीट में डाटा को एंटर करना है सबसे पहले 1 में जाएंगे. सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक थंबनेल को. कहाँ से? स्टार्ट स्क्रीन से. और ओपन करेंगे न्यू वर्कबुक को. 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल D1 में और टाइप कर देंगे रिपोर्ट कार्ड. अब सिलेक्ट करेंगे हम सेल रेंज को जहां पर आप टेक्स्ट को एंटर करना चाहते हैं. क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर बटन को अलाइनमेंट ग्रुप में होम टैब के. अब जो सिलेक्टेड सेल्स है वो मर्ज हो जाएगा और टेक्स्ट में के सेंटर में मर्ज हो जाएगा. 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल A2 में और टाइप करेंगे नेम.
प्रेस कर देंगे राइट एरो की को और टाइप करेंगे मैथ्स B2, साइंस C2। इसी तरीके से डाटा को एंटर करेंगे जितने भी और सेल्स हैं उसमें। 4 में जाएंगे, क्लिक करेंगे सेल A3 को, टाइप करेंगे अनाया और प्रेस कर देंगे एंटर की। जो सेल पॉइंटर है उसको मूव करेंगे सेल A4 पर। 5 में जाएंगे, टाइप करेंगे वैष्णवी, प्रेस डाउन करेंगे एरो की को और मूव करेंगे A5 में और टाइप करेंगे ओजस। सिमिलरली हमें जितने भी रिमेनिंग डाटा है उनमें भी इसी तरीके से एंटर करना है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डाटा पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा विच कैन बी एंटर्ड इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट। कौन कौन से हैं? टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। Text data includes alphabets, spaces and special characters. By default, text data is left aligned in a cell. Text data जो होता है उसमें alphabets होते हैं, spaces होते हैं, special characters होते हैं और by default जो text data होता है वो cell के left में align होता है। Numbers. This type of data contains numeral form 0 to 9 and the special characters like plus, minus, exclamation mark, @ dollar, percentage and then circumflex and etc. By default, numbers are right aligned in a cell. Formulas are mathematical equations that perform values in our worksheet. Formulas begin with an equals to sign. फिर आता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस पर। MS Excel 2016 allows you to perform calculations on the data like addition, subtraction, multiplication and division either using formulas or using functions। बच्चों MS Excel 2016 आपको अलाउ करता है बहुत सारे कैलकुलेशन को आप इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और आप फार्मूलाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फंक्शंस का भी। फॉर एग्जाम्पल, टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स इन H3 type B3 plus C3 plus D3 plus E3 plus F3 plus G3 and press the enter key। इनका कैलकुलेशन करेंगे और एंटर की कर देंगे। द सम ऑफ द वैल्यूज इन द सेल्स B3 to G3 is calculated and displayed in the cell H3। 1. You can use either type uppercase or lowercase letters to enter cell address। 2. AutoSum option of Excel provides you a quicker and easier way of performing calculations। Click on AutoSum button present either on the formulas tab or the home tab। Excel suggests a range which we can either accept or select a different range। To make use of auto sum option, move the cell pointer to cell H4, click on the auto sum button। Excel suggests the range B4 colon G4, accept the range by pressing enter key। The sum of the values in cells B4 to G4 is calculated and displayed in cell H4। मान लीजिए कि अगर आपको अपर केस और लोअर केस के लेटर को सेल एड्रेस में एंटर करना है, फिर आप 2 में जाएंगे, ऑटो सम ऑप्शन में जाएंगे। एक्सेल आपको प्रोवाइड कराएगा क्विकर और ईजियर वे परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेशंस को। क्लिक कर देंगे ऑटो सम बटन पर और उसके बाद फॉर्मूला टैब में जाएंगे, होम टैब के। एक्सेल हमें सजेस्ट करेगा एक रेंज जहां पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 में जाएंगे, अगर हमें बनाना है ऑटो सम ऑप्शन को तो मूव करेंगे सेल पॉइंटर को सेल H4 पर, क्लिक कर देंगे ऑटो सम बटन पर। एक्सेल सजेस्ट करेगा रेंज B4 colon G4, एक्सेप्ट करेंगे रेंज को कैसे? एंटर की का इस्तेमाल करके। अब जो सम की वैल्यू है सेल्स की B4 to G4 वो कैलकुलेट हो चुकी है और डिस्प्ले हो चुका है सेल H4 का। वर्किंग विद अ वर्कशीट, स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट्स। After adding a number of worksheets, you may need to switch between them for this. Use Control plus page up and Control plus page down की combination। बच्चों अगर आपको ऐड करना है वर्कशीट में नंबर्स को तो आपको स्विच करना पड़ेगा उनके बीच में। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन की का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा। रीनेमिंग अ वर्कशीट, टू रीनेम अ वर्कशीट डू द फॉलोइंग। 1. डबल क्लिक द शीट दैट tab that is to be renamed, it will be highlighted। 2. Now type a new name and press the enter key, or right click on the sheet tab you want to rename and click on the rename option। मान लीजिए अगर वर्कशीट को आप रीनेम करना चाहते हैं, उसके लिए 1 में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे उस शीट को जिसे आप रीनेम करना चाहते हैं, उसके बाद डबल क्लिक करने के बाद वो हाईलाइट हो जाएगा। 2 में जाएंगे, अब टाइप करेंगे नया नाम और एंटर की प्रेस कर देंगे, या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं शीट टैब पर जिसे आप रीनेम करना चाहते हैं, वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। एडिंग अ न्यू वर्कशीट, टू ऐड अ न्यू वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स।
Right click on the sheet tab and select the insert option. The insert dialog box appears with the worksheet option selected. Click OK. You will find that a new worksheet gets inserted before the selected worksheet. Or click on the new sheet icon present besides to the sheet tab. A new worksheet will be added, or select the insert sheet option in the cells group on the home tab. बच्चों मान लीजिए अगर आपको वर्कशीट को ऐड करना है, नए वर्कशीट को ऐड करना है, इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे शीट टैब को और फिर सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट के ऑप्शन को. इंसर्ट डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर होगा. वर्कशीट ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे. आपको मिलेगा एक नया वर्कशीट जो आपने सेलेक्ट किया था. या फिर आप क्लिक कर सकते हैं न्यू शीट आइकन को जो कि प्रेजेंट है शीट टैब में. एक नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा. फिर सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट शीट ऑप्शन को सेल्स में से होम टैब के ग्रुप से. रिमूविंग अ वर्कशीट. टू रिमूव अ वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स. 1. Navigate the mouse pointer on the worksheet tab that is to be deleted. 2. Right click on the sheet tab and select the delete option, or select the delete sheet option in the cell group on the home tab. अगर आपको वर्कशीट को रिमूव करना है, 1 में जाएंगे, नेविगेट करेंगे माउस पॉइंटर को उस वर्कशीट पर जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं. 2 में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे शीट टैब में और सिलेक्ट करेंगे डिलीट के ऑप्शन को. या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं डिलीट शीट के ऑप्शन को सेल्स ग्रुप में से जो कि होम टैब में दिया गया है. आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं. द एक्सेल फाइल इज ऑलवेज सेव्ड विद एन एक्सटेंशन .xlsx. Saving a workbook. To save a workbook, follow the steps given below. 1. Click on the File tab and select the Save As option. 2. The Save As window will appear. 3. Click on the Browse option. Browse the drive and the folder where you want to save the workbook. 4. Type the desired file name in the file name text box. 5. Click on the Save button. बच्चों अगर आपको वर्कबुक को सेव करना है उसके लिए 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल टैब को, सिलेक्ट करेंगे सेव एज के ऑप्शन को. 2 में जाएंगे, सेव एज का विंडो हमें अपीयर होगा. 3 में जाएंगे, क्लिक करेंगे ब्राउज के ऑप्शन को. अब जो ब्राउज है वो आपके फोल्डर के ड्राइव में है जहां पर आप वर्कबुक को सेव करना चाहते हैं. 4 में जाएंगे, टाइप करेंगे उस फाइल नेम को जिस भी नाम से आप सेव करना चाहते हैं. 5 में जाएंगे, क्लिक कर देंगे सेव के बटन पर. अब आ जाते हैं @NOAIT पर. Microsoft Excel is a spreadsheet software developed by Microsoft. The intersection of a row and column is called a cell. An Excel workbook displays a single worksheet by default with the name Sheet 1. There are 3 types of data that can be entered in a worksheet. They are numbers, texts, and formulas. Formulas are mathematical equations involving number values and operators used to perform calculations on a worksheet. You can do addition, subtraction, multiplication and division by using either formula or function. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर. Fill in the blanks with the help of words given below. The data in a dash lies in the form of table, double, spreadsheet, formula, cell, right arrow. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. राइट T for true and F for false statements. Microsoft Excel is a word processing software. True, false. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पर. Which of these button is used to perform addition of a range in a cell? Addition, sum, auto sum. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों चैप्टर की मदद से खुद से कीजिएगा. अब आते हैं स्किल शीट पर. एक्टिविटी स्किल्स. Suppose a teacher wants to show the result of the class test to the students within the class. She has typed the name, roll number and marks obtained in each test of each students in Excel and displayed the worksheet containing these details on smart board. बच्चों इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करना है. अब आते हैं लैब स्किल्स पर. Suppose your family is planning a birthday party of your grandfather. They want you to create a list of guests like their name, phone number and members who they want to invite. Calculate the total number of guests using MS Excel. बच्चों सपोज कीजिए कि अगर आपकी फैमिली जो है आपके ग्रैंडफादर के लिए बर्थडे पार्टी रख रही है और वो एक लिस्ट बनाना चाहती हैं गेस्ट का जिसमें उनके नाम, फ़ोन नंबर और जिन मेंबर्स को वो इनवाइट करना चाहते हैं वो होंगे. तो कैलकुलेट करना है आपको कि टोटल कितने गेस्ट होंगे और ये कैलकुलेशन आपको MS Excel में करना है. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन वर्कशीट?
वर्कशीट में कितने रोज और कॉलम्स होते हैं बताइए बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट स्किल्स, create a table containing the details of inter-school competition like name, ID, school, category, points, position in Excel। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप क्लास में सिखाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।